Good morning to all my dear students of Divya Brahmalok Global Academy. I am your value education teacher Vedahi ma'am, and today we will be starting with a very interesting story which is based on the value of appreciation. So let's get started. This is your value education textbook, The Salt in Life for Standard 8, and I hope you all must have purchased this textbook, and we will start with a new chapter today. But before that, tell me, what kind of thoughts come to your mind when you see a beautiful peacock dancing in front of you like this? And what will you say when you listen to the melodious sound of flute from Lord Krishna? अगर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते तो आपके मन में क्या विचार आते? आप क्या बोलते? And can you see the beautiful bonding between mother and child depicted in this picture? क्या आपको पता चल रहा है? And see the celebration, how that this kind of celebration changes your life. जितने भी दुख है, दर्द है, वो सब भाग जाते हैं, है ना? तो क्या इस बात का आपको अप्रिसिएशन नहीं करना चाहिए? And concentrate on this beautiful gesture. देखो, मदद तो हम सब करते हैं, but if we help a needy person, that is the best part. And everybody must do such kind of beautiful duties. So, a similar kind of thing we are going to start in chapter number 4, Beautiful Flowers. This is part 1 of the video in which we will be doing reading and explanation of the chapter. So, this is your chapter number 4, Beautiful Flowers, which is on page number 15 of your textbook. And after reading this chapter, the value which will be developed in your mind and in your life will be the value of appreciation. What is appreciation? Appreciation is a wonderful thing. It makes what is excellent in others belong to us as well. क्या बोलते हैं? appreciation जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है. मतलब appreciation क्या है कि ये एक टाइप की फीलिंग है कि दूसरों में जो कुछ भी अच्छा है वो इस वजह से है क्योंकि हम अच्छे हैं, हमारा देखने का नज़रिया अच्छा है. वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर. आपको कोई चीज़ सुंदर इसीलिए लग सकती है और उसकी तारीफ़ आप तभी करोगे अगर वो ब्यूटी, उस चीज़ के लिए वो ब्यूटी वाली फीलिंग आपकी आँखों में, आपके माइंड में होगी तो. अदरवाइज़ कितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ आपके सामने पड़ी हो, बट अगर if it's not in your mind and if it's not in your heart, you cannot see the beauty hidden in that particular thing. See what is mentioned over here. Have you ever appreciated your parents? आपने कभी अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया है? कि आपने कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला है? हैव यू एवर थॉट कि माई पेरेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड जस्ट टू फुलफिल ऑल माई डिमांड्स? कभी आपने ऐसा सोचा है? लिस्ट नेम ऑफ 5 पीपल whom you have appreciated. ऐसे कोई 5 लोगों के नाम आपको बताने हैं जिनकी आपने तारीफ़ की हो, उनकी या उनके काम की, उनके स्वभाव की, किसी भी चीज़ की आपने तारीफ़ की हो. ऐसे 5 लोगों के नाम आपको बताने हैं. हाउ डू यू फील व्हेन समवन अप्रिशिएट्स यू?
और आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपकी तारीफ करे? अभी आपने नोटबुक्स जो थी नोटबुक चेकिंग में दी थी, और अगर आपको वहाँ पर टीचर ने गुड लिख के दिया हो तो आपके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ जाएगी, है ना? And what are we going to learn from this chapter is one must appreciate all that is good and inspiring in oneself as well as others. जो भी कोई चीज़ जो कि दूसरों में है और जिससे आपको प्रेरणा मिले, उन सभी चीज़ों को अप्रिशिएट आपको करना ही चाहिए. A person who can appreciate the admirable in others is able to imbibe good qualities from others to improve himself or herself. अगर आप में किसी भी इंसान को अप्रिशिएट करने की आपकी आदत है, सो उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर इंसान में जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे आप भी अक्वायर कर सकते हो. क्यों? बिकॉज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट विल बी क्रिएटेड बिटवीन यू and the person whom you are appreciating. Appreciation, apart from helping develop the character of the person who appreciates, also lift the morale of one who is appreciated. देखो, appreciation में एक दूसरे की help तो करना आता ही है, that is a part of appreciation, but उससे आपका character भी develop होता है. एंड जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो उसको भी एक बूस्ट मिलता है. नाउ से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग ऑल योर रिटन वर्क ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन नीट, क्लीन, प्रॉपर मैनर, और अगर मैं आपको उसमें वेरी गुड या सुपर्ब या एक्सीलेंट लिख के दूंगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे जो वेरी गुड मिला है वो मुझे मेंटेन करना है, मुझे मैम को या कोई भी टीचर को ये मौका ही नहीं देना कि वो मेरी शिकायत कर सके, है ना? सो इट विल लिफ्ट द मोरल ऑफ वन हु इज अप्रिशिएटेड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पोर्शन. हरी वॉज फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. हरी को फ्लावर्स बहुत पसंद थे. द साइट ऑफ कलरफुल लिटिल फ्लावर्स and their fragrance recharged him instantly. जैसे ही हरी ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स की खुशबू को सूंघता था, फ्रेग्रेंस मतलब कि उसकी खुशबू, तो ऐसे होता था कि जैसे हरी की तो बैटरी ही रिचार्ज हो जाती थी. उसको जो भी दुख होता था वो सारा कुछ भूल जाता था, थकान भूल जाता था. किसकी वजह से? फ्रेग्रेंस की वजह से. He would halt and admire lovely blue, green, yellow, pink, red flowers in parks, gardens, roadside, wherever he would see them. अब हरी को फ्लावर्स इतने पसंद थे कि वो जहाँ कहीं भी जाए, चाहे वो घर के आंगन में हो या घर के बाहर हो या ट्रैवलिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो वहाँ पर हॉल्ट करेगा, रुकेगा ज़रूर. वो उन फ्लावर को देखेगा, उसकी ब्यूटी को एडमायर करेगा मतलब कि अप्रिशिएट करेगा, उसकी तारीफ़ करेगा. मन ही मन ये भी हो सकता है कि वो गॉड को थैंक यू भी बोल सकता है कि थैंक यू गॉड कि आपने इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए, ये भी हो सकता है. अब उसके मन में क्या है वो हम नहीं सोच सकते, बट अगर उसकी जगह आप होते तो आप शायद यही सोचते ना. He also knew quite a bit about flowers. अच्छा, अभी फ्लावर्स के बारे में उसको बहुत अच्छी जानकारी भी थी, मतलब कि their names, their special characteristics, when each of them blooms, which season is best for which flower, etc. मतलब कि आप समझ लो कि हरी ने फ्लावर्स के ऊपर बहुत अच्छे से डीपली स्टडी किया था. वाई? बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन फ्लावर्स. तो बहुत सारे फ्लावर्स के वो नाम भी जानता था. अगर किसी फ्लावर की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कोई खूबी है तो वो भी उसे पता था. कौन सा फ्लावर कौन सी सीज़न में खिलेगा, सभी किन से फ्लावर के लिए कौन सी सीज़न बेस्ट है, वो सब जानता था. बट देयर वॉज वन पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ब्लू फ्लावर्स दैट ऑलवेज इंट्रिग्यूड हरी. अभी एक ब्लू फ्लावर की एक वैरायटी थी जो कि हरी को
बहुत उत्सुक बनाती थी उसको जानने के लिए, मतलब कि उसकी क्यूरियोसिटी को और इन्हेंस करती थी. He wanted to know more and more about of a particular variety of blue flowers. He had noticed it near his school growing wildly next to a ditch. उसने क्या देखा था कि उसके स्कूल के पास एक गड्ढा था एंड वहाँ पर वाइल्डली मतलब कि ऐसे ही जंगली की तरह इन द सेंस कि बिना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई स्पेशल कंडीशन के बिना ही वो फ्लावर ग्रो कर रहा था नियर हिज स्कूल. He had noticed that this flower blooms only in morning hours and wilts by afternoon. अभी ये फ्लावर के बारे में उसने और एक चीज़ नोटिस की कि ये जो ब्लू फ्लावर्स है जो उसे बहुत पसंद थे वो मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब कि जब धूप इतनी तेज़ नहीं होती, ठीक है, तब वो फ्लावर ब्लूम करेगा एंड आफ्टरनून तक तो वो फ्लावर मुरझा भी जाता था. There was a small garden at the backyard of Hari's house too. अब हरी को फ्लावर्स इतने पसंद थे कि उसके घर के पीछे के साइड आंगन में एक छोटा सा गार्डन भी डेवलप किया था. सर्टेनली बहुत सारे फ्लावर्स उसमें भी होंगे. His father, who knew about his son's love for flowers, had set this garden up for him. अभी ये गार्डन किसने बनाया? हरी के फादर ने. Why? Because Hari's father knew that how much his son Hari is in love with the flower, and not only flower but the nature as well. They had a wide variety of flowers in their yard. तरह तरह के flowers थे. But Hari wanted to add the mysterious wild blue flowers to his garden. हरी को तो इतने सारे फ्लावर्स होने के बावजूद भी उसको तो वो जो मिस्टीरियस रहस्यमय वो जो ब्लू कलर के फ्लावर थे वो उसको गार्डन में उगाने की इच्छा थी. For 2 full weeks he saw them near his school and thought of taking one of those wild plants home. यहाँ पर टॉकिंग नहीं टेकिंग होना चाहिए था कि 2 वीक तक तो हरी ने बहुत अच्छे से उस वाइल्ड ब्लू फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया एंड देन उसको अचानक से ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसका ये जो सैपलिंग या पौधा जो भी है मैं घर ले जाऊं. ही वॉन्टेड टू प्लांट इट अलॉन्गसाइड अदर फ्लावर. वो चाहता था कि मेरे दूसरे फ्लावर के साथ ये वाइल्ड ब्लू कलर का मिस्टीरियस फ्लावर भी ग्रो करे. Plants in his yard. He even carried a shovel in his bag to neatly bring a plant for his garden. अभी उसने अब ये जब डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे वो मिस्टीरियस ब्लू वाइल्ड फ्लावर चाहिए, तो वो चुपके से अपनी बैग में एक शॉवल, खुरपी जैसा एक चीज़ होती है, वो लेकर जाता था सो दैट ही कैन रिमूव अ सैपलिंग वेरी नीटली विदाउट हर्टिंग द प्लांट. और उसने सोचा कि मैं वो उसका सैपलिंग मेरे घर पे लाऊंगा, बैकयार्ड पे लगाऊंगा. बट एवरी मॉर्निंग ही थॉट ही वुड डू सो वाइल रिटर्निंग होम इन द आफ्टरनून. बट इन द आफ्टरनून्स ही सिंपली फॉरगॉट. अब वो रोज़ सोचता था, घर से जब निकलता था तब ये डिसाइड करके निकलता था आज तो मैं वो ब्लू फ्लावर ला के रहूँगा. बट होता ये था कि आफ्टरनून जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी वो तो फ्लावर के बारे में भूल ही जाता था. He often visualized those wild blue flowers blooming in his garden and he admiring them from the window of his room or when he sat in the garden with his father. वो हमेशा ऐसे विजुअलाइज करता था, वो ऐसे डे ड्रीमिंग, वो सोचता रहता था कि उसके गार्डन में ये ब्लू फ्लावर्स उगे हैं. वो अपने बेडरूम की खिड़की से ही इज वॉचिंग दोज फ्लावर्स एंड ही इज सिटिंग विथ हिज फादर इन द गार्डन एंड बोथ ऑफ देम आर ऑब्जर्विंग एंड एडमायरिंग द फ्लावर्स. ऐसे वो दिन में भी सपने देखता रहता था. वन डे he had made up his mind that he would definitely bring home a sapling
and replant it in the garden. अब एक बार तो इसने बहुत अच्छे से ठान लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं सैपलिंग घर पे लाके रहूँगा. But when his classes got over and he came to the place next to the ditch, he realized to his dismay that someone had cleaned up the place. All the wild plants were gone. अब जब सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब वो गड्ढे के पास आया तो उसने क्या देखा? He was very shocked to see that somebody had cleaned the place. वो पूरा जो एरिया था खड्डे के आसपास का एरिया वो सारा कुछ सफाया हो चुका था. एंड देर वॉज नो वाइल्ड प्लांट्स जो उसे बहुत पसंद थे वो तो किसी ने हटा दिए थे. द एरिया लुक्ड स्क्वीकी क्लीन. एकदम चकाचक साफ हो गया. बट नॉट ब्यूटिफुल. उसके हिसाब से दैट क्लीन एरिया वॉज नॉट ब्यूटिफुल. वाई? बिकॉज द ब्यूटिफुल flowers, blue colored flowers, according to him, according to Hari, was adding beauty to the ditch and the nearby area. But अब उसे वो area beautiful नहीं लगता. Hari was saddened by the look of the area now without those wild plants. अब वो wild plant के बिना का area उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. He said to himself, At last, I waited for rather too long. कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी. I should have taken one of them and planted in my yard when I first saw them blooming. अगर मैंने जब मैंने पहली बार ये ब्लू फ्लावर्स को देखा तभी मैंने उसका सैपलिंग ले लिया होता तो आज मुझे पछताने की बारी नहीं आती. Hari could never find those beautiful flowers again, but he learnt a lesson. अब दुख की बात ये थी कि हरी को वो फ्लावर्स ब्लू कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहीं भी नहीं मिले. बट दिस इंसिडेंस वॉज हेल्पफुल टू हिम बिकॉज ही लर्नट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन हिज लाइफ दैट नेवर निग्लेक्ट अ थिंग दैट यू ट्रूली एडमायर. कोई भी चीज़ या कोई भी फीलिंग या कुछ भी जिसको आप दिल से एडमायर करते हो, प्यार करते हो, पसंद करते हो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसको अपनी प्रायोरिटी बना लो. अप्रिशिएट व्हाट यू फाइंड ब्यूटीफुल. आपके आसपास जो भी चीज़ है जो आपको ब्यूटीफुल लगती है आप उसे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए. और अप्रिसिएशन का तरीका सबका अलग अलग होता है तो वो तरीका भी आपको अपनाना चाहिए. एंड एक्ट एज सून एज देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. और अप्रिसिएशन का कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए. जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको उस चीज़ को या उस इंसान को या उस इंसान की क्वालिटी को या नॉन लिविंग थिंग्स को या लिविंग थिंग्स को जो भी है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए. वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए. सो दिस वॉज द रीडिंग पार्ट. In the next video we will be doing the writing portion. Okay, bye bye.